नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6 सेम, कोर्स पेडागोगी ऑफ सिविक्स, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। Student, today our session name is Maintaining the Ecology of the Classroom, Part 4. The Classroom Ecology Paradigm. Let's see in detail. Researchers in sports pedagogy in the context of making a conjecture that allows for a rich description of what's going on the game, along with providing an analytical lens to explain how those events develop. The class has found utility in following the ecological paradigm. The classroom ecology paradigm reflects the behavioral dynamics of classrooms in a way that helps teachers and researchers to interpret, predict, and read to those dynamics. Essential to this paradigm is that its focus is on studying life in classrooms as it unfolds naturally. Consequently, it has an anthropological dimension that can only be accomplished through regular and long-term observation of that life. Research in this paradigm focus on the work that students need to do during their lessons and represents class life as a set of three irrelated systems: managerial, instructional, and student social, in which there is a responsibility of change in one system of the effect changes in another. Two major issues in the ecological model are described by Doyle as order and educational work. It is important to understand that the two are closely linked. If, for example, a student or group of students becomes off task and potentially disruptive, this has clear implications for the amount of academic work that can be achieved, as the teacher most likely that will restore order and thus temporarily defer to the normative focus of the text. In the reserved sense, if a teacher maintains stricter
standards for student performance, classroom management tasks. The students' socialization opportunities may decrease. In fact, finding from early students in physical education using this model confirmed that the compelling agenda for physical education teachers is the order of establishment and maintenance through a managerial system that specially focus on collaboration rather than complaints. Next, teacher feedback and accountability. Once the tasks are assigned to students and students start performing, the teacher must make a number of decisions. When students' reactions to the task are considered non useful, the decision is most likely to continue with the task. Alternatively, where students are not responding to a satisfactory degree, the teacher may stop work and give new work to students. The middle ground for a teacher is to modify the work without giving up altogether. Doyle suggests that is a more sensible option because he claims that even under the best of circumstances, transitioning to new work is difficult to manage. More important, however, is the regardless of the nature of the original work and how clear the original work may be. It is the latter's supervision and accountability that determine the achievement of the work students. In all lessons, teachers provide students with comments with journal or specific information about the situationally of their behavior, efforts or performance. How these teachers express the consequences of student behavior. Well says defines an accountability system that operates in the classroom. Baker and Geer first referred to accountability as existing where there was an exchange of awards or grades for performance. However, it is important to note that grades are not just across on a report card. Rather, grades serve as a reward structure, which may be formal, such as a written test or skill test, or informal, which is far more common within physical education. This session prepared digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. लेट्स सी इन हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा पारिस्थितिकी प्रतिमान और मेन टॉपिक है मेंटेनिंग द इकोलॉजी ऑफ द क्लासरूम पार्ट 4. अब देखिए, कक्षा पारिस्थितिकी प्रतिमान उन घटनाओं को विकसित करने के बारे में व्याख्या करने के लिए विश्लेषणात्मक लेंस प्रदान करने के साथ साथ जिम में क्या चल रहा है कि एक समृद्ध विवरण के लिए अनुमति देता है. ये इससे हम जान सकते हैं कि एक अनुमान लगाने के संदर्भ में खेल शिक्षा शास्त्र में शोधकर्ताओं ने कक्षा पारिस्थितिकीय प्रतिमान का पालन करने में उपयोगिता पाई है. कक्षा पारिस्थितिकी प्रतिमान एक तरीके से कक्षाओं की व्यवहारिक गतिशीलता को दर्शाता है जो शिक्षकों और शोधकर्ताओं को
उन गतिकी की व्याख्या, भविष्यवाणी और प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। इस प्रतिमान के लिए आवश्यक ये है कि इसका ध्यान कक्षाओं में जीवन का अध्ययन करने पर है, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से सामने आता है। परिणामतः इसमें एक मानव विज्ञान का एक आयाम है जो केवल उस जीवन के नियमित और दीर्घकालीन अवलोकन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इस प्रतिमान में शोध उन काम पर केंद्रित है जो छात्रों को उनके पाठ के दौरान करने की आवश्यकता होती है, और 3 परस्पर संबंधित प्रणालियों, प्रबंधकीय, निर्देशात्मक और छात्र सामाजिक के एक सेट के रूप में वर्ग जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें प्रणाली में परिवर्तन की संभावना है, प्रभाव दूसरे में बदलता है। पारिस्थितिकी मॉडल में 2 प्रमुख मुद्दों को डायल द्वारा आदेश और शैक्षणिक कार्य के रूप में वर्णित किया गया है, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि वे 2 निकटता से जुड़े हुए हैं। यदि उदाहरण के लिए एक छात्र या छात्रों का समूह ऑफ टास्क और संभावित रूप से विघटनकारी हो जाता है, तो यह उस शैक्षणिक कार्य की मात्रा के लिए स्पष्ट प्रभाव है जो प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक सबसे अधिक संभावना है कि आदेश को बहाल करेगा और इस तरह अस्थायी रूप से उस पाठ को निर्देशात्मक फोकस को इंगित करेगा। रिजर्व अर्थ में, यदि कोई शिक्षक छात्र प्रदर्शन कक्षा प्रबंधन कार्यों के लिए कठोर मानकों को बनाए रखता है, तो छात्र के समाजीकरण के अवसर कम हो सकते हैं। वास्तव में इस मॉडल का उपयोग करते हुए शारीरिक शिक्षा में शुरुआती अध्ययनों से निष्कर्षों की पुष्टि हुई कि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए सम्मोहक एजेंडा एक प्रबंध की प्रणाली के माध्यम से स्थापना और रखरखाव का आदेश है, जो आमतौर पर अनुपालन के बजाय सहयोग पर केंद्रित होता है। शिक्षक प्रतिक्रिया और जवाबदेही। एक बार जब कार्य विद्यार्थियों को दिया जाता है और छात्र प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, शिक्षक को कई निर्णय लेने होते हैं। जब कार्य के लिए छात्रों की प्रतिक्रियाओं को गैर उपयोगी माना जाता है, तो निर्णय सबसे अधिक कार्य के साथ जारी रखने की संभावना होती है। वैकल्पिक रूप से, जहां विद्यार्थी संतोषजनक डिग्री पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, शिक्षक कार्य को रोक सकता है और विद्यार्थियों को नया कार्य दे सकता है। डायल बताता है कि एक अधिक समझदार विकल्प है, क्योंकि यह दावा करता है कि सबसे अच्छी परिस्थितियों में भी नए काम के लिए संक्रमण का प्रबंधन करना मुश्किल होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कार्य की प्रकृति की परवाह किए बिना और मूल कार्य कितना स्पष्ट हो सकता है, यह बाद की पर्यवेक्षण और जवाबदेही है जो कार्य छात्रों की उपलब्धि को तय करता है। शिक्षक विद्यार्थियों को उनके व्यायाम, व्यवहार, प्रयास और प्रदर्शन की उपयोगिता के बारे में सामान्य या विशेष जानकारी वाली टिप्पणियों के साथ टिप्पणी प्रदान करते हैं। डायल कहते हैं कि ये शिक्षक छात्र के व्यवहार के परिणामों को कैसे व्यक्त करते हैं, यह कक्षा में संचालित जवाबदेही प्रणाली को परिभाषित करता है। बेकर और गिर ने पहली बार जवाबदेही को मौजूदा के रूप में संदर्भित किया, जहां प्रदर्शन के लिए पुरस्कार या ग्रेड का आदान प्रदान करना था। हालांकि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ग्रेड केवल एक रिपोर्ट कार्ड पर स्कोर नहीं है, बल्कि ग्रेड इनाम संरचना के रूप में काम करते हैं जो औपचारिक हो सकता है, जैसे कि लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षण, या अनौपचारिक जो शारीरिक शिक्षा के भीतर कहीं अधिक सामान्य है। तो आज का जो सेशन है वो हमने डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आप यूं ही आगे से आगे ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।